أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. جزاك الله. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے. وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے. یہ
یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. بہت ہی خوبصورت شعر کہ مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. کیا بات. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان محوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان. یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور اس خوبصورت سے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے اس خوبصورت مہینے سے اتنی زیادہ رحمتیں برکتیں سمیٹی, وہیں پہ اب ہمارے دل ذرا سے غم زدہ ہیں, کیونکہ جتنا ہی ہمیں بے صبری سے انتظار تھا اس خوبصورت سے مہینے کا, اتنی ہی جلدی یہ مہینہ اب ختم ہونے کو ہے. آخری اشرا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور بہت ہی ایک خوشی کے اظہار کے ساتھ ایک بڑے ہی ایک ایکسائٹڈ موڈ میں ہم نے اس کا استقبال کیا اور دعائیں کر کر کے رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھری. وہیں پہ اب مایوسی بھی ہمیں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کہ یہ خوبصورت سا مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ایک نہیں بلکہ پورا سال چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھرتے رہیں, اسی طرح ایک دوسرے کے کام آتے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھ کے ہم سحری افطاری کرتے رہیں. کیوں جانتے؟ بالکل بالکل. اور یہ بات بڑی درست ہے کہ جس تیزی سے یہ ماہ ہماری زندگیوں میں آیا اسی تیزی سے یہ ہمارے دامن سے بہت دور جا رہا ہے. اور ہمیں اس مہینے کی اس جاتی ہوئی لمحات میں, اس جاتی ہوئی گھڑیوں میں اپنے رب کو منانا ہے. اپنے رب سے وہ تمام وعدے کرنے ہیں جو ہم نے توڑنے نہیں ہیں. ہم نے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی. ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ہم یقیناً اس ماہ رمضان میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے گناہ کیے ہیں, ضرور کیے ہیں, انسان ہے, خطاؤں کا پتلا ہے. اور تبھی تو میرے رب نے کہا ہے کہ تو مانگ اے بندے اور میں دینے کو تیار ہوں. تو ایک دفعہ کہے گا میں ہزاروں دفعہ دوں گا, تو ایک بوند مانگے گا میں برسات دوں گا. تو جب وہ برسات دینے کو تیار ہے تو اے غافل, اے میرے غافل انسان, تو اس جاتے وہی مہینے میں, ان آخری دنوں میں, آخری عشرے میں ہی یا آخری کچھ لمحات میں ہی اس رب کو منا لے. سچے دل سے سجدہ کر لے. کیا پتا وہ آخری سجدہ قبول ہو جائے. تقدیر کو جگا دے, اپنے مقدر کو جگا دے. بالکل. اور یہی وہ وقت ہے اور یوں سمجھیں کہ یہ جو چند دن ہمارے پاس رہ گئے یہ ہماری زندگی کے آخری دن ہیں. اور انہی دنوں میں ہم نے اپنے وہ تمام جو گناہ ہیں ان کی تلافی کرنی ہے, ان تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرنی ہے اور اپنی آخرت کو ہم نے سنوار لینا ہے. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ایگزام میں 2-4 دن باقی رہ گئے تو ہم کتنی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اور کتنے ہم بس ہم نے فرسٹ آنا ہے, اول آنا ہے. تو یوں ہی سمجھے کہ آپ کی زندگی کے یہی وہ چند دن رہ گئے اور آپ نے اپنی آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے اپنے جو ہے نا وہ اپنا سر نہیں جھکا لینا کہ ہم کیا لے کر آئیں, بلکہ اس طرح کے اعمال اپنے کر لیں, توبہ استغفار کر لیں, اپنے گناہوں کو بخشوا لیں کہ ہمیں کل کو آخرت میں مایوس نہ ہونا پڑے. اور ہمیں تو جانا پڑتا ہے امتحان دینے. یہاں تو امتحان کا جو ہال ہے وہ خود چل کر
रमज़ान की सूरत में हमारे पास आया है कि ए बंदे मैं खुद चल के तेरे पास आया हूँ, तू इम्तिहान दे और पास हो जा। एग्जैक्टली। और इन्हीं इम्तिहानों के साथ साथ इन्हीं खूबसूरत सी जो हम बातें करते हैं, इन बातों में मज़ीद चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ बड़े खूबसूरत से गेस्ट मौजूद होते हैं एज़ यूजुअल, जिनसे हम मज़ेदार सी बातें करते हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और रेड न्यूज़ की हमेशा से कोशिश भी रही है कि आप लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएँ जिनसे अगर आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं किसी प्रोग्राम को तो आपको कुछ ना कुछ जानने का मौका मिल सके। तो जल्दी से हम उन मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, क्यों जानते? जी जी, और यकीनन हमेशा की तरह आज भी हमारे गुलिस्तां के अंदर बहुत सारे खूबसूरत फूल जो हैं वो एक बार फिर हमारे पास मौजूद हैं, और इन्हीं फूलों के साथ महविश आज कुछ कलियां भी शामिल हैं। जब हम फूल की बात करते हैं, खुशबू की बात करते हैं, तो आज हमारे बाग के अंदर कलियां भी, गुलिस्तान के अंदर कलियां भी हैं। होनी भी चाहिए, उनके बगैर गुलिस्तान अधूरा है। गुलिस्तान अधूरा है उन तितलियों के बगैर, उन कलियों के बगैर, उन 7 रंग की रेनबो के बगैर गुलिस्तान का नज़ारा तो नज़ारा ना हुआ ना फिर। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत शख्सियात से, कुछ ऐसे ही मोती गेस्ट हमारे हैं, कुछ ऐसी ही नगीना गेस्ट हमारे हैं जो आज हमारे पैनल का हिस्सा बने हैं। और उनमें सर फहरिस्त हमारे पास हैं मोमना फयाज साहिबा, जो कि एक स्टूडेंट भी हैं और एक ज़बरदस्त किस्म की मॉडल भी हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? माशाल्लाह आपकी मुस्कुराहट से हमें अंदाजा हो रहा है बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक हूँ, बहुत बहुत फाइन हूँ, और वो बचपन से ही हूँ। हाँ, बचपन से ही हूँ। उसी के साथ तशरीफ़ फरमा है एक और ख़ूबसूरत मॉडल, एक और बेहतरीन टैलेंट, पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट जो स्टूडेंट भी है, जो मॉडल भी है और मेक ओवर आर्टिस्ट भी है, माशाल्लाह। जैज़ी खान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं आप मैं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और उसी के साथ साथ जहाँ हमने कलियों की बात की, जहाँ हमने गुलिस्तान की बात की, वहाँ कुछ संजीदगी की भी बात की जा सकती है। कुछ ऐसी बातें जो हमें अंदर से पुख्ता बनाती हैं, जो हमें एक रास्ता दिखाती हैं, जो हमें लाइन ऑफ एक्शन बताती हैं, और जिसके बगैर जाहिर सी बात है कुछ भी मुमकिन नहीं है। मोहम्मद अदनान साहब एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और एंकर पर्सन हैं। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? आपको रमज़ान सर बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ी देर पहले जो खूबसूरत सा कलाम आप लोगों ने सुना, वो कलाम जिसने हमारे रूह को गरमा दिया, वो कलाम जिसने हमारे लहू को गरमा दिया, वो सुरीली आवाज़ और किसी की नहीं थी, लेकिन थी तौकीर अहमद कादरी साहब की। आप नात ख्वाह हैं और एक प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस में आपके स्कूल्स भी हैं, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत सारा मुबारक। जज़ाकल्लाह। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया और इन खूबसूरत से मेहमानों से मज़ेदार सी बातें करेंगे, चटपटी सी बातें होंगी, लेकिन कुछ सीरियस टॉपिक्स भी होंगे, क्योंकि जहाँ हम हंसी मजाक चाहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में हमें फ़ायदा पहुँचा सके। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहें हुस्न रमज़ान। जी वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले यकीनन उन मेहमानों का तस्करा हो रहा था जो कि यकीनन हमारे भी आज का जो ये महफिल है उनको रंग देने वाले हैं, और आप भी इंतज़ार में होंगे कि कब उनसे बात हो, कब उनको हम जाने, कब ये महविश और जांजेब चुप करें और उनकी तरफ हम रवाना हों। और इसलिए हम सबसे पहले आपके उनके बीच में फासला बनने की बजाय पूछेंगे मोमना फयाज साहिबा से, कैसी हैं आप, और ये बताएं स्टूडेंट लाइफ के साथ मॉडलिंग कैसे शुरू किया? ये शौक था या बाय चांस हो गया, किस तरह? मुझे शौक था और पढ़ाई
पढ़ाई का भी मुझे बहुत शौक है। किताबी कीड़ा। नहीं, ये खैर आपने कवर करने के लिए बोला। शोबिज़ के साथ नहीं, पढ़ाई। मुझे पढ़ाई का, मैं माशाल्लाह से सीए कर रही हूँ। सीए कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मोमना सीए कर रही है। हाँ जी, और मैं उसके 3rd सेमेस्टर में भी हूँ। Very तो और मुझे मतलब अभी तो नहीं खैर थोड़ा अरसा हो गया, मुझे एकदम से जुनून आया कि मुझे पढ़ाई के साथ और भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ाई कीड़ा बन के वो कॉन्फिडेंट वो बनना नहीं हो सकता। तो फिर जैसे जैसे मैं शोबिज़ में गई, जैसे जैसे लोगों से मिली और मुझ में कॉन्फिडेंस आया और नए नए लोगों के साथ मैं मिली, नए नए लोगों के चेहरे देखे, अच्छे अच्छे लोग उनको जाना, पहचाने की वो समझ हो जाए। अभी तक तो मुझे सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे सारे अच्छे लोग ही मिले। अल्लाह करे आपको अच्छे ही मिले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। ठीक है। अच्छा, अमूमन देखा है कि सीए के या मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ऐनक लगाई हुई होती है और चुप्पू से होती है। एक्चुअली मेरी आईसेट वीक है, लेकिन मैं लगाती नहीं है भाई, बस क्या है ना कि उससे जरा खूबसूरती छुप जाती है पांच दफा। तो जैसी आपकी तरफ आते हैं, जो कि आप भी स्टूडेंट भी हैं, मॉडल भी हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी ये कैसे? ये एक्चुअली इकट्ठी नहीं थी, स्टेप बाय स्टेप थी। ओके, लेकिन कैसे आ गई ये स्टेप बाय स्टेप? कैसे आगे मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी और प्री मेडिकल एफएससी मैंने डन किया हुआ है, उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो मेरा एक बचपन से शौक था कि मैंने ना स्किन स्पेशलिस्ट बनना है, डर्माटोलॉजिस्ट। तो उसमें क्योंकि फिर जाहिर है फिर नंबर्स भी इतने ज़्यादा चाहिए होते हैं, आगे बहुत ज़्यादा स्टडी हार्ड और मतलब कि वो किताबी कीड़ा बनना पड़ता है। हाँ, किताबी कीड़ा में थी और मुझे ग्लासेस भी लगी हुई थी और मुझे लगी हुई है और मेरे घर में पड़ी है। बस लगानी नहीं है। हमारी दोनों खूबसूरत फीमेल को ग्लासेस लगी है, लेकिन लगानी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तेल वगैरह भी लगाती थी आप? ग्लासेस के साथ तेल का कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बो जो है ना, ये बताता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। पढ़ने वाला बच्चा ये रियल है। अच्छा चलो ठीक है, ये रियल है, हर कोई क्वेश्चन करते हैं लेकिन ये रियल है। ओके। तो उसके बाद अचानक से मैं अपनी सिस्टर के साथ गई एक जगह पे, उसकी फ्रेंड इंटरव्यू देने गई थी। तो मेडिकल के बाद जो फासला होता है कुछ डेज का रिजल्ट तक का, तो वो गई, तो मैं उधर सेलेक्ट हो गई। वो जॉब के इंटरव्यू के लिए गई, मतलब एज आ क्या कहते हैं कि इंटर्नशिप के लिए। उधर मैं सिलेक्ट हो गई, लॉरियल का था। और लॉरियल से फिर मैंने इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट से ये स्किन केयर और हेयर केयर और इस फील्ड में आ गई। तो आस्ता आस्ता फिर प्राइवेट मैंने स्टडी की और मैंने उस फील्ड को कंटिन्यू किया 3-4 साल। उसके बाद आस्ता आस्ता जब मैंने वो फील्ड छोड़ी तो मुझे ऑफर्स आने लगी मॉडलिंग की। मुझे कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं था। सही। हाँ, तो फिर मैंने उसको आस्ता आस्ता ज्वाइन किया, शोबिज़ को ज्वाइन किया और ये वो। तो अब यूट्यूब चैनल है मेरा, कॉस्मेटिक एक्सपीरियंस मैं उधर शो कर रही हूँ और साथ साथ इधर टाइम दे रही हूँ स्टडी को। जैसे अब कोविड है तो अभी कंटिन्यू नहीं है, तो इंशाल्लाह एडमिशन का वेट कर रही हूँ यूनिवर्सिटी में। ये सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चल रही हैं। क्या बात है, और इसमें मैं एक बात, जैसे मोमना ने कहा था कि वो स्टूडेंट थी तो उन्होंने कहा कुछ डिफरेंट किया जाए, तो मेरे ख्याल से हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा हो जिसमें जो करने से आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आए, आप लोगों को जान सके। डिफिकल्ट टास्क, मल्टीटास्क से ना हर चीज मुश्किल लेती हूँ, मुझे होना भी चाहिए। उससे आपने लिया मुश्किल, फिर आपने मॉडलिंग ली मुश्किल, क्या मुश्किल, क्योंकि मॉडलिंग में लोगों को समझना पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जरूर मोमना ने कहा कि मैं खुद को चैलेंज करती हूँ। ऐसा बड़े कम लोग हैं जो खुद को वो दूसरों को चैलेंज कर रहे होते हैं, मैं ऐसे बेहतर बन के दिखाऊंगा, लेकिन ये कहती है मैं अपने आप से बेहतर बन के दिखाऊंगी। तो दिस इज अ वेरी गुड स्पिरिट। मैं समझता हूँ ये आगे बढ़ने की बहुत कामयाबी की सीढ़ी है ये। बिल्कुल। और हर जो हमारे खवातीन है, फीमेल है, यंगस्टर हैं, चाहे मेल फीमेल दोनों, उनके अंदर ये हौसला होना चाहिए। और इस चीज़ को मजीद मोटिवेट करने के लिए अदनान साहब हमारे साथ है, उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अदनान साहब न सिर्फ हमें और दीगर लोगों को बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मोटिवेट करते हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल को हाई रखते हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकिंग, इंस्पिरेशनल किस्सों के साथ उनको उस काम की तरफ गामजन करते हैं जिनसे वो पीछे हट रहे होते हैं। और यकीनन वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं हम भी लूज कर जाते हैं, दुनिया का हर आदमी लूज करता है। कोविड में बहुत लोगों ने लूज की, लेकिन यहीं पे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की अहमियत का अंदाजा हुआ। अदनान साहब, आप बताएं इस फील्ड में कैसे आए, और जैसे टीवी प्रेजेंटर भी हैं और साथ में आप ये फील्ड भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कैसे इस फील्ड में आपका आना हुआ?
बस अचानक से ट्रेनिंग्स में आना शुरू। इससे पहले मैं डेवलपमेंट सेक्टर में था। मैं अभी हम सब अचानक आए हैं अभी तक। अच्छा, सब ये अचानक आ रहे हैं। अच्छा, मैं INGO में मैंने काम किया। अच्छा। डोनर्स के साथ काम किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम किया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा। सो अचानक से एक जगह पे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी और मेरा उसका एक्सपीरियंस भी था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी जो ट्रेनर थे हमारे वो बाई चांस मिस हो गए हैं, तुम्हें ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है। तो फिर मैंने वहाँ से ट्रेनिंग जो मैंने कंडक्ट कराई, वो लकीली वो फुल डे ट्रेनिंग ही मैंने करवा दी। वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग थी और उनको हमने ट्रेनिंग करवाई थी पीस डेवलपमेंट के हवाले से कि इनर पीस और आउटर पीस कैसे आप कर सकते हैं, वो उस पर मैंने किया। फिर उसके साथ साथ जब मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनमें कमी होती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, क्योंकि वो सिर्फ स्टडीज़ से रिलेटेड रहते हैं और उनको आउटर वर्ल्ड के बारे में वो कम रखते हैं, किताबी कीड़ा स्टूडेंट्स होते हैं और क्योंकि वो ध्यान नहीं देते बाकी चीज़ों पे। GPA मैटर करता है हमारा, लेकिन हमें उसके साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में जो दूसरी स्किल्स हैं वो भी सीखनी पड़ती है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो गेस्ट हैं इन्होंने साथ साथ अपनी स्टडीज़ के प्रैक्टिकल लाइफ में आई हैं, इन्होंने अपनी प्रोफेशन को चूज़ किया है। इसी तरीके से जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ दूसरी स्किल्स को भी सीखें, ताकि जैसे वो स्टडी खत्म करें उसके बाद आसानी से अपने रोजगार का बंदोबस्त भी कर सके और अपनी लाइफ को आगे अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सके। एग्जैक्ट, ये बड़े प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं पहले डिग्री ले लें बाद में काम कर लेंगे। हाँ, ये बड़ा फिर बाद में एक्सपीरियंस नहीं होता और फिर दर दर की ठोकरें खाते। अब हम क्या करें, इतनी बड़ी डिग्री ले ली हुई कुछ मिल नहीं रहा। भाई आप पहले एक्सपीरियंस तो कर ले, आपके पास टाइम होता है, आप पार्ट टाइम को जॉब कर सकते हैं, जिस तरह अब ये मोमना कर रही हैं, जर्जी कर रही हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस आ गया। तो ये मोटिवेशन। और ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो आपको डिग्री दे सकती है, जो स्किल्स हैं वो आपको रोजगार देते हैं, स्किल्स आपको पहचान देते हैं। तो यकीनन आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करें। और अदनान साहब, मैं समझता हूँ कि आप बड़ा अच्छा काम करें इस हवाले से कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फिर टीवी प्रेजेंटेशन कैसे आपने सोचा? एक्चुअली मैंने जैसे पहले बताया कि मेरा जो फील्ड थी वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट थी। तो मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अच्छा। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स जो प्रोफेशंस के होते हैं, मेरे साथ जो इंडस्ट्री के गेस्ट होते हैं उनके साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ, उनसे मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं। बेसिक रीज़न ये थी क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में स्टूडेंट लाइफ से बाहर आए थे तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि CV क्या होती है, जॉब इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, ईमेल कैसे लिखी जाती है और बाकी जितने भी ऑफिस के काम होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। हमने बड़े धिक्के खाए, बड़ी गलतियां की, बड़ी डांट खाई, उसके बाद हमने ये चीज़ें सीखी। तो फिर ख्याल आया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनको भी इस तरह की मोटिवेट करनी चाहिए। तो फिर मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर। तो फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करते ही मैंने अपना प्रोग्राम डिज़ाइन किया प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। तो बेसिकली यूथ पे फोकस्ड है। जी, यूथ पे फोकस है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोग्राम है जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट। माशाल्लाह। ओवरऑल जनरल बात की जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं हर चीज़ को साथ लेके चलूँ जिसमें आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आपकी फील्ड एक्सपोजर है, आपकी जो इंडस्ट्री के गेस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्शन है हमारा। सो ये ओवरऑल एक फुल पैकेज है जो यूथ के लिए है, जिससे वो प्रोफेशनल डेवलप हो सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और जैसे कि 2015 में ऑस्लो में एक समिट हुई थी जहां पर ये बताया गया था कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, जो उनके सेंसस थे उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान 64% पॉपुलेशन रखता है। ये 2015 की फिगर है, आज ये पॉपुलेशन फिगर बढ़ चुकी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अमॉन्ग थर्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो कि यंगेस्ट पॉपुलेशन पे बेस करता है, और हमारा 80% पॉपुलेशन इस वक्त यूथ है। और माशाल्लाह पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ। और यूथ के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जॉब्स की कमी नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो जॉब देने वाले हैं, जो कंपनीज हैं, उनको एक स्किलफुल पर्सन चाहिए। जब आप डिग्री लेके डायरेक्ट आएंगे, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर कोई आपको कैसे जॉब दे सकता है? आपकी एबिलिटी जो है उस वक्त बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो यूथ से मैंने पहले भी अर्ज किया कि यूथ को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी स्टडी के साथ साथ कि हमने यहाँ से निकल के कैसे जाना है, कैसे आगे क्या करना है। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में सेशन शुरू किए और मैंने स्टूडेंट्स से जब ये पूछा कि अगले 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, तो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई अनहोनी सी बात कर दी। वो कहते हैं कि हमने तो अगले महीने का नहीं सोचा, शाम को खाना नहीं पता कि क्या खाना है। ये तो हमारी प्लानिंग कुछ भी नहीं है। तो हमारी यूथ को जो है वो एक्सपोजर या जो कहा जाता है ना, उनको प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में नॉलेज वो बहुत कम है उस चीज़ का। वो एक सेट पैटर्न पे चल रहे हैं कि हमने एक डिग्री लेनी है, हमने एक अच्छा GPA ले लेना है और उसके बाद फिर हमें जॉब मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप स्टडीज रूट कंटिन्यू करें, अच्छा GPA भी लें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचें कि आपने यहाँ से डिग्री करने के बाद आगे कहाँ जाना है। एग्जैक्टली, डिग्री के बाद आपने आगे क्या करना है, आपकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप डिग्री ले रहे हैं लेकिन
ڈگری لینے کے بعد آگے کی آپ کی منزل کیا ہے یہ بھی آپ کے مائنڈ میں ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بڑے بڑے خواب دیکھ لیتے ہیں, ہاں ہماری یہ ایک اچھی ڈگری ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو بس, تو جاب تو جیسے ہی ہم یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلیں گے جاب آگے جو ہے وہ پڑی ہوگی, ایسا نہیں ہوتا, وہ بھی سی او کی جاب. ایسا ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا, میں ایوب یونیورسٹی میں تھا, ایم فل کر رہا تھا, میں نے بزنس اکنامکس میں ایم فل بھی کیا ہے. سو ایک اسٹوڈنٹ کی کمیونٹی بیٹھی تھی, وہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں سے بس جاب کریں گے, اس کے بعد یہاں سے اسٹڈی کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم یو این میں چلے جائیں گے اور وہاں بڑی اچھی سیلری ہوتی ہے. کیا بات ہے. یقین کریں کہ میں نے وہاں بیٹھ کے سوچا کہ میں 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ یو این میں جانے کی, میں اس طرف نہیں جا سکا, اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جن کا بھی کوئی ایکسپوئر بھی نہیں ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے. سو یہ ہماری یوتھ کا جو مسکنسیپشن ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پریکٹیکل لائف جو ہے بہت ڈفرینٹ ہے, بالکل بہت ڈفرینٹ. اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب وہ یونیورسٹی کو چھوڑ کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, تب ان کے زبان میں ایک ہی شاید لفظ ہوتا ہوگا, کاش ہم نے ساتھ کچھ کر لیا وہ ہوتا. تو ان خوبصورت سی باتوں کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے, لیکن بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم توقیر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے خوبصورت سا کلام, بسم اللہ کیجیے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ کی یاد بن کر, جو ہجر طیبہ کی یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام آقا بلال آیا, کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر
جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. اس خوبصورت سی محفل کو اس خوبصورت سے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کتنی زبردست باتیں تھیں, کتنی انفارمیشن جو ہے ہم نے گیدر کی ہے. عدنان صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے یوتھ کے حوالے سے, بہت سی نئی ایونیوز اوپن ہوئی ہیں اور یقیناً جو ہماری یوتھ اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہوگی اور بہت سارا فائدہ ملا ہوگا عدنان صاحب کی باتوں کو سن کر. اور جہاں فائدہ ملا یوتھ کو, وہاں یوتھ ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی تو فائدہ ملنا چاہیے. اور اگر وہ جاننا چاہیں کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے یا ماڈلنگ کیسے کی جاتی ہے یا بلی کی چال کیسے چلی جاتی ہے جس کو ہم کیٹ واک کہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں مومنہ اور جیزی خان کے پاس. مومنہ, یہ بتائیں کہ یہ بلی کی چال کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے؟ کہ آپ نے اس کو بلی کی جو ہے نا وہ بھائی کیوں اردو دی میں بلی کی چال ہی کہتے ہیں, انگریزی میں کیٹ واک کہہ لو, ایک ہی بات. چلے مومنہ یہ بلی کی چال بتائیں. ایکچولی میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے اسٹارٹ کیسے لیا آپ؟ میں جب ایف ایس سی کے بعد تو میں تھی لائک میرے گھر والے بالکل بھی اس بات کے لیے رضامند نہیں تھے. اچھا کہ اس فیلڈ میں نہیں جانا. تو ایسا ہوتا ہے ویسے. ہاں ہوتا ہے. تو پھر ان کو میں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے وہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ. تو پھر وہ مان گئے, ایٹ لاکھ مان گئے. مومنہ نے منا لیا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنی مرضی کا لائک جو بھی کر سکتے ہو کرو, اگر آپ لوگ آگے جانا چاہتے ہو تو جاؤ. پھر میں نے اسی طرح اسٹارٹ لیا, اپنا پورٹ فولیو وغیرہ بنوایا اور الحمدللہ مجھے آفرز آنا شروع ہو گئے اور آج میں آپ کے سامنے. اچھا تو کوئی مشکلات نہیں, مطلب سٹارٹ میں آپ کو فیلڈ کا بھی آئیڈیا نہیں تھا, لوگوں کا بھی نہیں پتا تھا؟ ہاں ہوتے ہیں, لیکن انسان کو ہر چیز ایکسیپٹ کر لینی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ, مینیج کرنے آنی چاہیے. اگر وہ مینیج نہیں کرے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے, ہر چیز کو مینیج کرنا آنا چاہیے. جی جیزی صاحبہ آپ بتائیں, آپ کی لائف میں تو چیلنجز ڈیفینیٹلی آئے ہوں گے, اور بلی کی چال کا بھی بتائیں جیسے یہ جاننا چاہتے ہیں. بلی کی چال اور پھر میک اوور اور پھر ماڈلنگ سب کچھ کیسے چیلنجز رہے؟ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری لائف میں تو حد سے زیادہ چیلنجز آئے ہیں, لیکن ایک نارمل لڑکی جو فیس کرتی ہے نا, میں نے شاید اس سے زیادہ فیس کیا ہے. کیونکہ جو لڑکی کانفیڈنٹ ہوتی ہے نا شروع سے, ایک ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہو, آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ آہستہ آہستہ پریکٹیکل لائف میں جا کے کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں جا کے, لیکن میں شروع سے ہی کانفیڈنٹ تھی اور جو بھی میں نے کرنا ہوتا تو میں کرتی تھی. وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا معاشرے میں, وہ معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا. ایکچولی جب میں نے میٹرک کیا تو تب تک میرا فائن آرٹس کا تھا کہ میں فائن آرٹس میں جاؤں گی. میرے بہت اچھے مارکس آئے, میری کلاس ٹیچر نے میرے گھر والوں کو بلایا, کہا کہ اس کو میڈیکل میں ڈالو, یہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے, بریلینٹ ہے, برائٹ ہے, زیادہ اوور شو نہیں کرتی, لیکن یہ نمبرز لے لیتی آخر میں. تو میڈیکل میں پھر میرے گھر والوں نے مجھے فورس کیا کہ میڈیکل میں جاؤ. میڈیکل میں نے پڑھا, اس میں بھی ٹھیک تھی, لیکن آگے جتنی ٹف روٹین آنی تھی نا تو مجھے اس کا اندازہ تھا. تو میں نے اس کو تھوڑا, اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں تھوڑا پروفیشنل فیلڈ میں چلی جاؤں گی کاسمیٹک میں. جیسے مجھے لوریل انٹرنیشنل برانڈ ہے, اس میں آفر ہوئی تو میں ضرور گئی, میں نے وہ اویل کیا, اور اس میں پھر مجھے کچھ عرصے کے بعد سیلری بھی ملنے لگی, اور کچھ ایسے ایکسپیرینس ہوئے بہت اچھی ٹریننگ, سب کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ملی اتنی سی ایج میں جن کے ساتھ شاید لوگ بہت آگے جا کے ملتے ہیں, ان سے ٹریننگز لیتے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا.
उसके साथ साथ मैंने स्टडी फिर अपनी रखी, प्राइवेट रखी, रेगुलर नहीं गई लेकिन प्राइवेट रखी। और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो और आप छोटे होते हो, जैसे मैं गई थी तो मुझे सारे कहते थे तुम छोटी सी बेबी लगती हो, तो सीरियसली ये कॉम्प्लीमेंट मिलता था। और जब मैंने बहुत अच्छा सीख लिया और मैं उन लोगों से आगे चली गई, आगे चली गई, तो हर किसी का अपना, जैसे मैं फाइन आर्ट्स, मेरा स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, तो मेकअप, वो स्टूडेंट अब मेकअप को बहुत अच्छा पिक कर लेता है, ठीक है। हालांकि जब मैं गई थी तो मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं करना आता था। मैं नॉर्मल एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, चश्मे वाली। अभी आईलाइनर लगा लेती हैं आप? मैं बहुत अच्छा आईलाइनर। अच्छा, ये आईलाइनर का आपने क्यों पूछा? मैंने सुना है कि कहते हैं कि जिसने आईलाइनर लगाना सीख लिया वो जबरदस्त बन गया। मैं वही बता रही हूँ कि जब मैंने गोल रोटी बनाना और एक आईलाइनर लगाना, ये दो चीजें। गोल रोटी आ गई तो अच्छी हाउसवाइफ हो जाएगी। अच्छा, मल्टीटास्कर, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है। गोल रोटी बनानी आती है। तो जब मैंने ना मैं गई तो मुझे मेकअप नहीं करना आता था। मेरी सीनियर थी नाज़मा, उनका नाम ज़रूर लूँगी, बहुत नाइस है, अभी वो अब्रॉड जा चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे पहले 5 दिन मेकअप किया, फिर उन्होंने कहा खुद प्रैक्टिस करो, खुद लगाने सीखो। फिर उन्होंने मुझे सिखाया, फिर मेरी ट्रेनिंग्स होती थी। और फिर उसके बाद उनको मेरा काम इतना पसंद आया, वो इतनी सीनियर मुझसे लाइनर लगवाती थी। और जब उनका दिल नहीं करता था मेकअप करने का, वो मेरे सामने बैठ जाती थी, जैसे अब मुझे मेकअप करो। ऐसे ही सारी मेरा स्टाफ, लाइनर तुम लगाओगी। तो मेरा लाइनर की जॉब मिल गई। ये जो वर्ड जैजी है, ये शोबिस का वर्ड है या आपका घर का नाम है? नहीं, ये घर का नाम नहीं है एक्चुअली, ना शोबिस का है, ये मेरी फ्रेंड्स ने मुझे नाम दिया है। अच्छा, तो आपका घर का नाम क्या है? घर के राम को पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। खुल जाएगा। वही कहीं वो दादी नानी अम्मा वाला नाम तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फूल का नाम है। अच्छा, फूल का नाम है, ऐसा क्या? हाँ, हम समझ गए। नहीं, आगे चलते हैं। तो उसके बाद वो प्रोफेशन रखने के साथ साथ फिर मैंने सोचा कि मैं इसको मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, मैंने सब कुछ सीख लिया, जहाँ जाना था मैंने जा लिया, नाम बना लिया फील्ड में। अब मैं अपना एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट करती हूँ। जब मैंने उसके लिए एक सब कुछ अरेंज किया, सब कुछ किया, तो 2020 के शुरू में मैंने करना था, कोविड आ गया। हाँ, ये कोविड की वजह से काफी कोविड आ गया, सब कुछ रह गया। मेरी 70% प्लानिंग्स, तैयारी सब कुछ रह गई। छोटा सा सेटअप करना था, लेकिन वो अपना होना था। बिल्कुल, तो अपनी चीज़ अपनी होती है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना। तो अपना होना था, तो उसको मैंने आस्ते आस्ते लेके चलना था, वो रह गया। फिर मैं घर में ऐसे फिर कुछ भी नहीं कर रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा अपना यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ। मुझे सब ने कहा कि तुम में इतनी स्किल्स है, तुम ये करो। फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, साथ साथ वो, और साथ साथ जब लोगों ने मुझे देखा, मेरी प्रोफाइल देखी, तो मुझे मॉडलिंग की ऑफर्स आने लगी। और मैंने बहुत मुश्किल से घर वालों से परमिशन ली और वो काम पिक किया जो मेरे लिए ठीक था। अच्छा, ये मॉडलिंग फील्ड जो है, ठीक है, शोबिस में और बहुत सारी डेजिग्नेशन है, लेकिन मॉडलिंग का जो स्पेशल है, इसमें घर वाले जो है ना वो ज़रा स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं? मेरे घर वाले कहते हैं कि एक्टिंग, मॉडलिंग कुछ भी नहीं, मतलब वो शोबिस के किसी भी, कहते हैं जो मर्जी करो। क्या बात है। नहीं, मैंने ज़्यादातर जो सुना है वो मॉडलिंग का सुना है कि इसमें बहुत ही मुश्किल से परमिशन मिलती है या फिर नहीं मिलती। एक्चुअली ना इसलिए होता है क्योंकि फील्ड का स्टार्ट मॉडलिंग से होता है। अब बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग करते हैं या डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं। अपनी बात बताऊं तो मैं डायरेक्ट एंकर आई थी, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आप मॉडलिंग से स्टार्ट करते हो, ठीक है, मॉडलिंग से आपको ऑफर होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरे साथ वाले की एक्सपीरियंस ये है, और मैंने बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स देखी हैं, कोलीग्स देखी है जिनका ये एक्सपीरियंस है। तो उधर से स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्ट लेना मुश्किल होता है। सही यानी ठीक है, स्टार्ट एक ऐसी चीज से आगे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है, आप जरा लोगों को जान जाते हैं, नहीं होता, घर वालों को भी नहीं होता। और जैसे कि यू नो कि मीडिया के बारे में क्या है, सबकी राय क्या है। नहीं, एक्चुअली वो कहते हैं हर फील्ड कोई भी ऐसी नहीं है, सती सावित्री कोई भी फील्ड नहीं है, लेकिन मीडिया कुछ हाईलाइट ज्यादा है। ऐसे ही है, मीडिया को लोग कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट समझते हैं, जिसको पता भी इतना नहीं होता मीडिया के बारे में क्या, लेकिन फिर भी बस जो जिस दिन आप एक चेक लेके आते हैं ना घर में कि जी आज मैं ये चेक लेके आया, उस दिन के बाद से मीडिया अच्छा हो जाता है। उस दिन के बाद से कमाऊ पुत्र हो जाता है जी, मीडिया भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, हम कमाऊ पुत्र पहले से है, लेकिन
इसकी परमिशन ज़रा बहुत मुश्किल शुक्रिया है। आप दोनों प्यारी प्यारी खवातीन का, आपने हमें वक्त Thank you दिया, so इतनी much. मज़े मज़े की बातें हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जज़ाकल्लाह। मज़े मज़े की बातें की। बस इसी तरह same मज़े here. मज़े की हमें अफ्तारी भी करवा दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर, चैनल के ऑफर आ करानी गया आप लोगों ज़रूर। को चाहिए, लेकिन हम लोग करा कोई नहीं, देंगे। हम भी करवा देंगे, लेकिन कभी आप भी हमें करवा दीजिएगा। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। हम देखेंगे मॉडल के हाथ का खाना कैसा हाँ होगा। एग्जैक्टली, जहाँ वो वैसे इतनी मुझे अच्छी, खाना भी बहुत अच्छा जहाँ वो बनाना इतनी अच्छी बिल्ली की चाल चलती है, गोल वहाँ वो रोटी, इतनी अच्छी कुकिंग भी कर सकती हैं कि नहीं, ये हम फिर कभी जानेंगे इनसे। थैंक यू सो मच जी। और you जाने so से पहले much. अदनान साहब, हमारी यूथ के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज? हाँ, यूथ के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि होपफुल रहें, पुरुमीद रहें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। अब कोविड में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं आपके लिए, जैसे अब उन्होंने बताया कि उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया। अब अल्लाह करेगा इसके बाद उनको अर्निंग भी स्टार्ट हो इंशाल्लाह, जाएगी। इंशाल्लाह। यूथ बहुत पोटेंशियल है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, दुनिया को जानने की ज़रूरत है। आप अपनी आज से सोचें कि आपने अगले 5 साल में कहाँ जाना है, बिल्कुल, किस अपने फील्ड में जाना है टारगेट सेट आपने। करें ना। और ये जो अभी आप डिग्री कर रहे हैं, इससे आप क्या फ़ायदा उठाएंगे? लाइक अगर आप मिड में हैं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद जब आप डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे तो मार्केट में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और अगर आप इजाज़त दें, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपने जिस फील्ड में जाना है अभी से उसको टारगेट कर लीजिए, उसमें देख लीजिए कि उस फील्ड में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे आप उस तक पहुँच सकते हैं। और उसके साथ साथ आप उस फील्ड के लोगों से मिलिए, उनसे मुलाकात कीजिए, इंटरव्यू कीजिए, उस फील्ड के बारे में जानिए, ताकि आपको पता चल सके कि जब आप डिग्री करके निकलेंगे तो जब आप किसी जगह पे इंटरव्यू देंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से वो जॉब या प्रोफेशन। अदनान साहब, किसी ने अगर डायरेक्ट वज़ीर आज़म बनना हो तो उसके लिए क्या? ये पाकिस्तान में तो नहीं बन सकता, अगर आप यूएस में कहते हैं तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहती चलूँ कि जब हमारा प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, हमारे जो को होस्ट जांजेब खान है, ये अपने आप को वज़ीर आज़म जो है वो सेलेक्ट कर चुके थे, कर चुका था मैं, डिक्लेयर कर चुके थे, कबीना भी बना ली थी। और बिल्कुल अपनी कबीना भी ये बना चुके थे, शायद इसीलिए सवाल कर रहे हैं। मैंने बताया पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने वक्त दिया। हमारी ख़वातीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त ख़त्म हो जाता है, अफ्तारी का टाइम करीब है। और एज़ यूजुअल मैं यही कहूँगी कि रेड न्यूज़ की पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, जो अपने लिए इतने खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर आती हैं, स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशन के, और ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनसे आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी और जांजेब खान को इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खूबसूरत सा इख्तितामी कलाम सुनेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते आपके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अल्ताफीहिम आपसे, क्यों इन्हें दूं मैं सजाएं, आपके होते हुए क्यों इन्हें दूं मैं सजाएं, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए,
آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے زخمی دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخمی دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان